Hello everyone. Today I am going to start class 9 chapter 6 lines and angles exercise 6.2. In the last video I have told you what are the properties of parallel line, what is parallel line, what is transversal. When parallel line intersected by a transversal, then how many type of angles are formed. After it I have told you some theorems and axiom. On the basis of that theorem and axiom, today we will solve exercise 6.2. So it's my request to you all, if you have not seen that video, please go through the video, last video, properties of parallel line and angle formed when parallel lines are intersected by a transversal, theorems and axioms. Okay, so let's start. Question number 1. Question number 1 is given in your book, NCERT book. In figure 6.28, find the value of x and y and then show that AB parallel CD. This is the figure. This is AB and this is CD. Okay, this is a transversal. Here angle is given 50 degree and here angle is given 130 degree. This is y given and this is given x. You have to find the value of x and y, and after it you have to show that these two lines are parallel to each other. AB and CD are parallel to each other. How will you solve? How it will be solved? See here, y and 130, these two are vertically opposite angle. So clearly we will write that angle y, question number 1, angle y is equal to 130 degree. Y vertically opposite angles. Okay. Again we will write 50 plus x is equal to 180 degree. Y linear pair of angles, linear pair of angles. ये हो रहा है ना, 50 और x ये मिला के लीनियर पेयर होंगे. ठीक है, लीनियर पेयर की डिफिनेशन में हमने बताई थी कि लीनियर पेयर आर टू एडजेसेंट एंगल वेयर द नॉन पैरेलल साइड्स आर टू अपोजिट रेज. तो 50 प्लस x आपका 180 डिग्री हो गया, तो x यहाँ से निकाल लेंगे. 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री. अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए, x भी 130 हो गया और y भी आपका 130 हो गया. ठीक है, तो x भी 130 हो गया और y भी 130 हो गया. अब x और y कौन सा एंगल बना रहे हैं? देखिए, x एंड y आर अल्टरनेट एंटीरियर एंगल. तो ये आपका इक्वेशन 1 कर दीजिए एंड दिस इज इक्वेशन 2. फिर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 angle x is equal to angle y. Okay, but these are alternate interior angles made by lines AB and CD. Therefore AB parallel CD. एक चीज़ याद रखिए, ए बी पैरेलल सी डी दिया नहीं गया. ए बी पैरेलल सी डी हमको प्रूफ करना है, इसलिए हमने यहाँ डायरेक्टली y इक्वल टू एक्स नहीं दिखाया. ठीक है, पहले हमने y की वैल्यू वर्टिकली अपोजिट से निकाली और x की वैल्यू हमने लीनियर पेयर से निकाली. फिर हमने दिखाया x और y बराबर है. ठीक है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम से ए बी और सी डी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. इट इज गिवन इन दिस फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ. इट मीन्स ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ. ये तीनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है. ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ. इट मीन्स ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ. ओके, नाउ
It is given also y is to z is equal to 3:7. Y and z is equal to 3:7. Find x. अब एक चीज़ बताइए आप कि y एंगल यहाँ है और z यहाँ है, y और z का कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में होता तब रिलेशन बनता। तो हम क्या करेंगे, ये y है, ये भी एंगल क्या कर लेंगे, y लिख लेंगे। ठीक है, ये y है, ये भी y हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। बात समझो। तो यहाँ हम कुछ देर के लिए 1 लिख देते हैं। ठीक, अब लिखेंगे सिंस CD पैरेलल EF there and let it is T and T is a transversal। ठीक है, therefore angle 1 plus angle Z is equal to 180 degree। Why? Co-interior angle on the same side of the transversal, interior angle on the same side of transversal। तो ये 1 और Z का 180 वैल्यू हो गया। फिर लिखेंगे सिंस एंगल y इज इक्वल टू एंगल 1, y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, देयरफॉर अब ये y की जगह 1, मतलब 1 ये जो एंगल है यहाँ 1 की जगह हम एंगल y लिख सकते हैं प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ दिया गया है रेशियो y इज टू z कितना है, 3:7। तो लेट एंगल y एंड एंगल z आर 3a एंड 7a कर देते हैं। ठीक है, तो ये y प्लस z जब 180 आ गया तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 10a हो गया इक्वल टू 180 डिग्री। तो a इक्वल टू हो गया 180 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, अब ये 18 डिग्री हो गया a की वैल्यू। तो y एंगल y निकालते हैं। एंगल y कितना हुआ आपका 3a, तो 3 इंटू 18 इज इक्वल टू 54 डिग्री। ओके, और एंगल z निकालते हैं कितना, 7a, तो 7 इंटू 18 कितना हो गया, 126 डिग्री। ध्यान दीजिए, तो y कितना आ गया हमारा, y आ गया 54 डिग्री और ये z कितना आ गया 126 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है ना। तो फिर वो क्या करेंगे, सिंस AB पैरेलल CD, अब AB और CD पैरेलल दिखा देंगे, एंड T इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर x प्लस 54 इज इक्वल टू 180 डिग्री। y यहाँ भी लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 180 माइनस 54, तो कितना आ गया, 10 माइनस 4 6 और 7 माइनस 5 2, 126 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 126 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। y हमने निकाल दिया। तो ये सॉल्यूशन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। इट इज गिवन दैट इन फिगर 6.30 it means this is the figure in which AB parallel CD, okay, EF is perpendicular to CD. Perpendicular means you know that this is the angle of 90 degree, okay. GED is equal to given 126 degree. GED, this is total angle 126 degree, total angle 126 degree, and this is 90 degree. Remember it. You have to find AGE, GEF and FGE. AGE, GEF and FGE, this angle. These three angles you have to find it. See here, GED is equal to given I am doing the solution. GED is equal to 126 degree. But in GED two angles are there, GEF and FED. Angle GEF
प्लस एंगल FED इज इक्वल टू 100 एंगल GED. And what is the value of GED? GED is 126 degree. And what is the value of FED? It is 90 degree. FED it is 90 degree. Okay, angle GEF. तो GEF plus 90 equal to 126. तो angle GEF is equal to 126 minus 90 is equal to 36 degree. तो angle GEF is equal to 36 degree. This is the first solution. This is 36 degree. Okay. Now AGE, if you erase this line, you can see AGE is equal to GED. Why? This is alternate interior angle. Okay. Since angle AGE is equal to angle GED, ध्यान से देखो, ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये पूरा एंगल ये क्या होगा? इक्वल होगा. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो GED की वैल्यू कितनी है? 126 डिग्री. GED की वैल्यू कितनी है? 126 डिग्री. तो AGE कितना हो गया? AGE इज इक्वल टू 126 डिग्री. ये भी आपका एंगल हो गया. ठीक है, ये सेकंड हो गया. अब थर्ड पे आते हैं EGF. अब यहाँ एक चीज़ देखिए, ये और ये एंगल दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल. तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल AGE प्लस एंगल FGE. FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ओके. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AGE? AGE का वैल्यू अभी हमने निकाला कितना? 126 डिग्री. दिस इज 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो FGE इज इक्वल टू 180 माइनस 126. 10 minus 6 4, 7 minus 2 5, 54 degree. So these three angles I have found. AGE की वैल्यू कितनी हो गई? 126 डिग्री. GEF की वैल्यू कितनी हो गई? GEF की वैल्यू 36 डिग्री और FGE की वैल्यू कितनी हो गई? 54 डिग्री. तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया. ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. एंड वी रिमेंबर, डोंट मिस एनी ऑफ द स्टेप. इफ यू आर राइटिंग, suppose I have written here AGE equal to GED, then why these are equal? You have to mention it. This is very compulsory. If I am writing AGE plus FGE is equal to 180 degree, why this is 180 degree? You have to write it. Okay, let's come to question number 4. One figure is given here. In this figure PQ parallel ST. This PQ is parallel to ST. देखिए, पैरेलल होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइन इसी के ऊपर होनी चाहिए. इस लाइन को भी आप एक्सटेंड करोगे तो ये यहाँ तक आएगी. एंड दैट्स वाई इट इज गिवन PQ parallel ST. PQR is equal to 110 degree. 110 degree PQR. एंड RST equal to 130 degree. You have to find QRS. ये एंगल आपको निकालना है. तो अब देखिए, यहाँ कोई आपके पास क्राइटेरिया नहीं है कि हम कैसे निकालेंगे. तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? एक लाइन हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे. ठीक है, जहाँ भी इस तरह कंडीशन हो. जैसे देखिए, एक एग्जांपल आपके पास है. एग्जांपल में भी दिया हुआ है कि इस तरह का क्वेश्चन है. ये दो लाइन जो है पैरेलल हैं. तो वहाँ हम क्या करेंगे? सेंटर से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे इन दोनों के पैरेलल. ठीक है, उसके बाद ये जो एंगल दिया गया है उसी के बराबर ये एंगल हो जाएगा, इस एंगल के बराबर ये एंगल हो जाएगा और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा जो है हमारा एंगल आ जाएगा जो हमें निकालना है. एग्जांपल आप देखिए सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा उसे. तो यहाँ भी हम क्या करते हैं? एक एक्स्ट्रा पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं. लेट्स ड्रॉ अ पैरेलल लाइन XY. अ पैरेलल लाइन XY
ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई विच इज पैरेलल टू पी क्यू एंड एस टी थ्रू आर। आपके हिंट में भी दिया गया है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ड्रॉ करते हैं तो आप उसे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या लिखते हैं? कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे? ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई थ्रू आर पैरेलल टू, किसी के पैरेलल लिख दो, पी क्यू या एस टी, पी क्यू। ओके, नाउ अब सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, अब जब पी क्यू के पैरेलल ये एक्स वाई हो गया तो पी क्यू और एक्स आर पैरेलल हो जाएगा। सिंस पी क्यू पैरेलल एक्स आर एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, क्यू आर इज तो पी क्यू पैरेलल एक्स आर एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। अब जब ट्रांसवर्सल हो गया तो इन द ट्रांसवर्सल व्हेन टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। इट मीन्स इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल एक्स आर क्यू, एक्स आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे को इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 110 डिग्री। एक्स आर क्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो एंगल एक्स आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू कितना हो गया? 70 डिग्री हो गया। ठीक है, ये यहाँ आ गया कितना? 70 डिग्री। अब एक्स आर क्यू हमारा कितना हो गया? 70 डिग्री हो गया। ठीक इसी तरह, क्योंकि ये एंगल आपको निकालनी है तो ये तभी निकलेगा जब ये और ये निकाल लेंगे। अगेन चूंकि हमने एक्स वाई ड्रॉ किया है पी क्यू के पैरेलल और पी क्यू जो है एस टी के पैरेलल है, सिंस एक्स वाई पैरेलल पी क्यू एंड पी क्यू पैरेलल एस टी, देयरफॉर यहीं लिख देंगे एस टी पैरेलल आर वाई। अब एस टी और आर वाई पैरेलल हो गया और एस आर जो है यहाँ ट्रांसवर्सल दिखा देंगे एंड एस आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब एस आर जब ट्रांसवर्सल हो गया, ध्यान दीजिए, जब एस आर ट्रांसवर्सल हो गया तो अब ये और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ भी लिख देंगे क्या? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो आर एस टी की वैल्यू कितनी है? देखिए यहाँ पे आर एस टी की वैल्यू 130 डिग्री है। ये 130 प्लस एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एस आर वाई कितना हो गया? 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। अभी आ गया आपका क्या? 50 डिग्री। अब ये एंगल आपको निकालनी है क्यू आर एस। फिर लिखेंगे सिंस एक्स आर वाई इज ए स्ट्रेट लाइन। अब देखिए स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी हमने बताया था आपको कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है? 180 डिग्री। मतलब ये पूरा एंगल तीनों मिला के कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने दो एंगल निकाला है। एक निकाला है एंगल एक्स आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस, दूसरा एंगल है क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर टी, या ये अभी निकाला हमने एस आर वाई, सॉरी एस आर वाई प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे तीन एंगल बन रहे हैं, एक्स आर क्यू, क्यू आर एस और एस आर वाई। तो एक्स आर क्यू की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री है। क्यू आर एस हमें नहीं पता, क्यू आर एस निकालना है। और एस आर वाई कितना है? 50 डिग्री है। ये 50 डिग्री है।
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब यहाँ कर लेते हैं। अब इसको देखिए, ये 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस हम निकाल देंगे, क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो कितना हो गया 60 डिग्री। तो क्यू आर एस की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 60 डिग्री। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको ये समझना है कि जब दो लाइन पैरेलल है और इस तरह की कंडीशन है, तो हम एक कॉन्स्ट्रक्शन अलग से कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा हम कॉन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, और वट एवर कॉन्स्ट्रक्शन वी आर डूइंग वी हैव टू मेंशन हियर। हम यहाँ कॉन्स्ट्रक्शन करके मेंशन करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. Now see question number 5. If AB parallel CD, this is the figure, AB parallel CD, APQ is given 50 degree, PRD is given 127 degree, find X and Y. X और Y दो एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा है ये देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए आप इसको इरेज कर दें इस लाइन को, तो क्या हो रहा है, ये AB parallel CD and PR is transversal. सॉल्यूशन देखिए, जहाँ वैल्यू निकालना है वहाँ आपको गिवन और टू प्रूफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कॉन्स्ट्रक्शन करते हैं तो कॉन्स्ट्रक्शन लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हो गया आपका, सिंस AB पैरेलल CD एंड PR इज ट्रांसवर्सल, PR इज ट्रांसवर्सल। अब देखो, जब ये PR ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल और ये पूरा एंगल ये मिला के कितना हो जाएगा, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे APR इज इक्वल टू PRD, देयरफॉर एंगल APR इज इक्वल टू एंगल PRD। वाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, फिर इसको मिला लेते हैं। ठीक, अब APR में दो एंगल हैं आपके, APQ और QPR। एंगल APQ प्लस एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल PRD। अब PRD की वैल्यू हमारी कितनी है, 127 डिग्री। APQ की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री। QPR कुछ नहीं है, तो एंगल QPR यहाँ से हम निकाल लेंगे, QPR इज इक्वल टू 127 माइनस 50 इज इक्वल टू 77 डिग्री। ठीक है, तो ये Y कितना आ गया, 77 डिग्री, 77 डिग्री। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर Y इक्वल टू 77 डिग्री। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर इस लाइन को इरेज कर दो, पूरा इरेज करो, तो देखो अब ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, तो x क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 50 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सिंस अगेन फिर लिखोगे AB पैरेलल CD एंड PQ इज ट्रांसवर्सल। ओके, देयरफॉर एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल APQ। वाई, ये भी लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो PQR की वैल्यू कितनी है, X है, PQR, ये PQR, ये फिर मिला लेते हैं, PQR X है और ये APQ कितना है, 50 डिग्री। तो X कितना हो गया, 50 डिग्री और Y 77 डिग्री। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th. क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन, PQ एंड RS आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये दो मिरर हैं PQ और RS, ठीक है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ एट B। AB इंसिडेंट रे स्ट्राइक द मिरर एट B। ओके, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C। यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये C पे फिर स्ट्राइक कर रहा है और यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है D पे जा रहा है। ठीक है, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD। प्रूव दैट AB पैरेलल CD।
यहाँ आपको ये प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, ये सी डी और ये ए बी। ठीक है, तो यहाँ गिवन लिखेंगे। गिवन क्या लिखेंगे? जो भी आपके क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर placed parallel to each other. An incident ray AB strike the mirror PQ at B. The refracted ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflect back along CD. ये इतना आपको जो है गिवन में लिखना है। ठीक है, पूरा जो क्वेश्चन में दिया गया है वो आपको गिवन में लिखना है। टू प्रूफ क्या करना है हमें? ए बी पैरेलल सी डी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, और गिवन में क्या दिया गया है? चलो अगर मान लो बुक की लाइन नहीं लिखते हो तो ये हम लिख देते हैं, गिवन पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद लिख देंगे ए बी स्ट्राइक्स एट बी again BC strikes at C and moves to CD. ओके, अब देखो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा है क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एक लाइन होती है इमेजिनरी लाइन नॉर्मल, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, बी एक्स बी एन कर लेते हैं इसको, और ये सी एम कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ लिख लेते हैं एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। अब ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन हमने कर लिया। ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एम परपेंडिकुलर आर एस। ठीक, तो अब देखिए कंस्ट्रक्शन हमने किया, ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एम परपेंडिकुलर आर एस। ठीक है, तो ए बी इज द इंसिडेंट रे एंड बी सी इज द रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों से इंसिडेंट रे जो जाके किसी सरफेस पे जो रे टकराती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जो टकरा के वापस आती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इक्वल होता है, मतलब 1 और 2 इक्वल है और 3 और 4 इक्वल है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझे? अब इसको हम प्रूफ कैसे करते हैं? देखो प्रूफ, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे? लिखेंगे सिंस बी एन परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एम परपेंडिकुलर आर एस। ओके, देयरफॉर क्या हो जाएगा? बी एन इज पैरेलल टू सी एम हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा? जब भी दो पैरेलल लाइन पे दो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर भी इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, इन दोनों के बीच भी कोई भी पॉइंट जो है अनइक्वल नहीं होती है, सारे पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे सिंस पी क्यू पैरेलल आर एस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर दो पैरेलल लाइन पे दो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों परपेंडिकुलर आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो जब बी एन पैरेलल सी एम हो गया, ध्यान दीजिए, अब बी एन पैरेलल सी एम जब हो गया, तो जब बी एन और सी एम पैरेलल हो गया तो फिर लिखेंगे सिंस बी एन पैरेलल सी एम, और ये बी सी जो है ट्रांसवर्सल हो गया इनका, एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल। तो जब ये बी सी ट्रांसवर्सल हो गया तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो गया। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 क्यों हुआ?
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो 2 और 3 इक्वल हो गया। अब जब 2 और 3 इक्वल हो गया, दो एंगल आपस में इक्वल है, तो इन दोनों का डबल भी इक्वल होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 से इंटू कर देंगे दोनों को, 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 3। ध्यान दीजिएगा, 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 2 एंगल 3। अब एंगल 2 को अगर हम डबल करते हैं, ठीक है, तो ये अपना डबल हो गया और 1 और 2 इक्वल है। तो डबल का मतलब क्या हुआ, एंगल 2 प्लस एंगल 2, और यहाँ हो गया एंगल 3 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब 2 की जगह हम 1 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे अभी मैं बता रहा हूँ। और ये 3 की जगह हम 4 लिख देंगे। क्यों लिखेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ। देखो, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की लॉ के अकॉर्डिंग 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है। तो जहाँ 2 और 2 प्लस 2 किए हैं, वहाँ एक 2 की जगह हम 1 लिख सकते हैं, और जहाँ 3 प्लस 3 किए हैं, एक 3 की जगह हम 4 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस 2 और ये हो गया 3 प्लस 4। अब 1 प्लस 2 देखिए क्या हो गया, ये पूरा 1 प्लस 2 मिला के क्या हो गया, ये एंगल हो गया ABC। देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल टू 3 और 4 मिला के क्या हो गया, BCD, एंगल BCD। ठीक है, तो ये पूरी एंगल और ये पूरी एंगल आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब फिर ध्यान दीजिए, अब इन दोनों लाइन को देखिए, AB और CD को, और ये BC ट्रांसवर्सल है, और ये एंगल पूरा इक्वल है। ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो ABC इज इक्वल टू BCD हो गया, बट these are alternate interior angles made by lines AB and CD. AB and CD cut by the transversal BC। मतलब ये ABC और BCD दो अल्टरनेट एंगल्स हो गए, जो लाइन AB और CD के ट्रांसवर्सल BC से कट होने के बाद बनते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हैं, देयरफॉर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं AB इज पैरेलल टू CD। प्रूव्ड। बात समझ में आ गई? फिर से एक बार समझिए, मैंने ये बताया था कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनने, ये नॉर्मल होता है, जो परपेंडिकुलर होता है ये नॉर्मल होता है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल 1 और 2 बराबर है, और ये 3 और 4 बराबर है। जब दो पैरेलल लाइन पे दो परपेंडिकुलर खींचा जाता है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर भी आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो जब ये BN और CM ये पैरेलल हो गया, तो इसके बीच का ये 2 और 3 एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद हमने क्या किया, 2 को 2 एंगल 2 कर दिया, और 3 को 2 एंगल 3 कर दिया। अब एंगल 2 को 2 बार लिख दिया, रूट एंगल 2 प्लस एंगल 2, और 3 को भी 2 बार लिख दिया, एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब चूंकि 1 और 2 बराबर होते हैं, तो एक 2 की जगह हमने 1 लिख दिया, और एक 3 की जगह हमने 4 लिख दिया। तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 हो गया। अब 1 प्लस 2 इज इक्वल टू ABC एंगल हो गया, और 3 प्लस 4 इज इक्वल टू BCD एंगल हो गया ना। तो ये दोनों एंगल ABC और BCD आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मेड बाय द लाइन AB एंड CD एंड ट्रांसवर्सल BC। ठीक है, देयरफॉर AB पैरेलल टू CD। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। टुडे आई हैव gave you the solution of exercise 6.2 question number 1 to question number 6. Solve these all question thoroughly and stepwise in your notebook. And it's my humble request, don't skip the video, see the total part of the video so that you can understand the steps. This is the geometry. Without understanding the steps, you are not able to solve any of the question. Okay?
So solve these all question in your notebook by the steps followed by me. Okay, thank you. Thanks for watching this video. You have to like, comment and subscribe my YouTube channel Deveshwar Math Classes and press the bell icon for the notification of new video. In the next video I will solve again some theorems and exercise 6.3. Up to then, thank you very much.